A very good morning to you all students. Today we are going to start our next chapter of geography, that is manufacturing industry. In last class we have completed fourth chapter of geography, that is agriculture. Fifth chapter is not in our course, means theoretical portion of fifth chapter is not in our course. We have to do only map portion of fifth chapter. Understand beta? Like third chapter water resource we have done only map portion na. Similarly minerals, that chapter number 5 we have to complete only map portion. Understand beta? So today we are going to start sixth chapter, that is manufacturing industries. So beta, in any production process three steps are there. First step, that is three sectors are there beta: primary sector, secondary sector and tertiary sector. So secondary sector is manufacturing sector, that is that I have already told you before 2 3 years, from last 2 3 years in 7th 8th 9th continuously we are studying that primary sector is related to raw material sector, that is agriculture, mining, quarrying. Secondary sector is related to manufacturing sector or processing sector, and tertiary sector is related to finished goods or service sector. So basically in any production process three levels are there: production of raw material, then converting raw material into finished goods through middle sector, that is industries. So producing raw material, processing raw material and converting that into the finished good. The second stage of any production is called as manufacturing sector, or manufacturing or processing anything. Understand beta? Here in your book definition of manufacturing is given: प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़, के गुड्स को लार्ज लेवल पे प्रोड्यूस करना और उसके बाद उसको प्रोसेस करना फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल, मतलब किसी भी चीज़ में वैल्यू ऐड करना, किसी भी चीज़ को किसी और शेप में कन्वर्ट कर देना, जैसे कॉटन एज ए रॉ मटेरियल, कॉटन को कन्वर्ट करना थ्रू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इनटू क्लोथ्स और anything, any other thing, that is called as manufacturing. Understand बेटा? तो कॉटन से जो है अपन क्लोथ बनाते हैं, वुड से पेपर, शुगर केन से शुगर, उसी तरह से आयरन ओर से आयरन स्टील. सो ये सारे एग्जांपल्स दे रखे कि किस तरीके से जो है एक रॉ मटेरियल से जो है थ्रू इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है कुछ और फिनिश गुड्स तैयार हो जाता है, उस गुड्स में रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड हो जाती है. अंडरस्टैंड बेटा? तो पीपल जो है एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. तो जो भी लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं वो क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल आता है उसको थ्रू प्रोसेसिंग प्रोसेस जो है कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में. ठीक है, जैसे कि वर्कर एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, कार, बेवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज फॉल इनटू दीज कैटेगरीज. ठीक है, दे आर मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स, दोज वर्कर्स आर रिलेटेड टू सेकेंडरी सेक्टर. Some people are employed in providing service. In this chapter, we are mainly concerned with manufacturing industries which fall in the secondary sector. ये मैंने बता ही दिया, manufacturing industries are related to secondary sector, and this chapter is about secondary sector. And these manufacturing industries are very important for any country's development. Without these industries, development of any country is not possible. So, country's development is totally dependent on these manufacturing industries. Now let us see the importance of manufacturing industries. So you do one question in homework. What do you mean by manufacturing industries? What are the importance of manufacturing industries? So let us discuss the importance of manufacturing industries. Manufacturing industries not only help in modernizing agriculture, which forms the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of पीपल. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस हो जाएगी कि जो पहले एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंडेंट थे, अब जो है वो शिफ्ट हो गए हैं सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर पर जॉब पर्पज से, और एट द सेम टाइम जो है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती है. कैसे मॉडर्नाइज करती है कि एग्रीकल्चर के लिए जो सारे इरिगेशन ट्यूबवेल्स, पंप सेट, मशीनरी, आज जो इतना मैक्सिमम लेवल पर सेम पीस ऑफ लैंड से प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? मशीनरीज की वजह से. ये मशीनरीज कहाँ बनी है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे. तो एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने मॉडर्नाइज किया है एग्रीकल्चर को. एट द
सेम टाइम जो एग्रीकल्चर पे बर्डन था लोगों का, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन अननेसेसरी, अपन ने पढ़ा था ना डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो डिस्गाइज मीन्स अननेसेसरी लोग जो इन्वॉल्व थे दे आर शिफ्टेड टू अदर सेक्टर, तो इससे डिपेंडेंस भी खत्म हुई है और प्रोग्रेस भी हुई है कंट्री की. तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. लेट अस सी द सेकंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट प्रोवाइड employment and it's at the same time remove poverty from the country. This was the main philosophy behind public sector industry and joint sector venture in India. It was also aimed at bringing down regional disparities by establishes regional disparities थी. कोई ज़्यादा रिच स्टेट है, कोई पुअर स्टेट है, तो पुअर स्टेट्स में भी, बैकवर्ड स्टेट्स में भी इंडस्ट्रीज ओपन से होने से वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है वो रीजन्स. तो इस तरह से रीजनल जो डिस्पैरिटीज थी उनको भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने खत्म किया है बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट. अंडरस्टैंड बेटा. थर्ड इंपॉर्टेंस हो जाएगी कि एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड एक्सपांड्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज. जो फॉरेन करेंसी हमको चाहिए होती है, ठीक है, कोई भी चीज़ हमको इंपोर्ट करनी है दूसरे देश से तो हमको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होगी. फॉरेन करेंसी तब मिलेगी जब हम कुछ एक्सपोर्ट करेंगे. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ने जो है हमारे फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने में बहुत जो है मेजर रोल प्ले किया और इससे हमको फॉरेन एक्सचेंज मिलने में भी हेल्पफुल रहा है. तो दिस इज द third importance of manufacturing industry. Last importance of manufacturing industry is countries that transform their raw material into a wide variety of finished goods of higher value are prosperous. India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible. तो ऐसे देश जो अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके सेल करते हैं तो वो देश जो है जल्दी से प्रॉस्पर कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं इंडिया की प्रॉस्पेरिटी में भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है मेजर रोल प्ले करती है. तो ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंस ऑफ manufacturing industries. Now in next paragraph we will see that agriculture and industries are interrelated, interconnected, go hand in hand. मतलब एक दूसरे पे निर्भर है और साथ साथ चलती है. कैसे? एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल, तभी तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उनको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगी. और जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है मशीनरी और इनपुट प्रोवाइड करेगी एग्रीकल्चर सेक्टर को, तभी तो वो डेवलप करेगा. तो बोथ द सेक्टर्स आर इंटरलिंक और इंटरडिपेंडेंट. अंडरस्टैंड? Let us move to next page. इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और स्पेशली ये दे रखा है इस पैराग्राफ में कि जो ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, मीन्स ओपन मार्केट टू ऑल वर्ल्ड कंपटीशन. एमएनसीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज से हमको कंपटीशन फेस करना है लोकल प्रोड्यूसर्स को, तो ऐसे समय में जो है हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो बहुत डेवलप्ड होनी चाहिए, तभी हम फॉरेन मार्केट को, इंटरनेशनल मार्केट को टक्कर दे सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी. इसको रीड करके समझेंगे. ओवर द लास्ट 2 decades द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैज स्टैग्नेटेड at 17% of GDP out of the total of 27% for the industries which include 10% for mining, quarrying and इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस. तो टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का शेयर है कंट्री के जीडीपी में वो 17% है और 10% जो है इलेक्ट्रिसिटी, क्वायरिंग, माइनिंग और गैस, तो टोटल 27% है. दिस इज़ मच लोअर इन कंपैरिजन टू, अगर दूसरे कंट्रीज से, ईस्ट एशियन कंट्रीज से कंपेयर करें तो हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ अभी भी उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है जितने कि दूसरे देश जो अपने देश को आगे बढ़ाने में देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. वेयर इट इज़ 25, ईस्टर्न एशियन कंट्रीज जो हैं वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का 25 to 35%. द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज़ बिन अराउंड 7% पर एनम. मतलब हर साल 7% जो है इंक्रीज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन, जो जबकि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि 12% होना चाहिए, तो हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं? सिर्फ 7%. Since 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द, बट 2003 जो ईयर है वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग ने 7% से 9 to 10% पर एनम कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, ग्रोथ रेट हुई है. ठीक है. विद गवर्नमेंट, और ये ग्रोथ रेट किस वजह से हुई है कि गवर्नमेंट एफर्ट्स के कारण, रिन्यूड एफर्ट बाय द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी. इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट दैट मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड. और इकोनॉमिक्स का मानना है कि जो हमारा टारगेट है 12% पर एनम ग्रोथ, वो जल्द ही हम अचीव कर लेंगे. द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग
कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC हैज़ बीन सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव, और इसी ऑब्जेक्टिव के चलते इस जो है काउंसिल का भी सेटअप किया गया ताकि जो हमारा टारगेट है वो हम इजीली अचीव कर सके। अब है इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो लोकेशन आपको पता है कि कोई भी इंडस्ट्री जो है ओपन करने से पहले वहाँ की जो है सारी लोकेशन को देखा जाता है कि वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ओपन होने से पहले भी फैसिलिटीज़ देखी जाती है कि वहाँ का मार्केट क्या है, वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ क्या है, लेबर कॉस्ट क्या है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है, पावर अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखकर ही कहीं भी कोई भी इंडस्ट्री ओपन की जाती है। ठीक है, तो ये आप रीड करना, आपको समझ में आ जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह सब देखी जाती हैं। अब है एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़, ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको रीड करते हैं। मैनी इंडस्ट्रीज़, यहाँ से लिखो कि डेफिनेशन एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ की, many industries tend to come together to make use of the advantage offered by the urban center known as, जब एक साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज कोई पर्टिकुलर एरिया में ओपन हो जाती है वहाँ के एडवांटेजेस लेने के लिए, तो उसे बोला जाता है एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। मतलब ऐसी इकोनॉमीज, ऐसी जगह जहाँ जो कि इंडस्ट्रियल हब है, जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ ओपन हो गई है। ग्रेजुअली अ लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक प्लेस। In the pre-industrial period, most manufacturing units were located in place from the point of view of overseas trade such as Mumbai, Kolkata, Chennai, etc. प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मीन्स जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रह रहे थे उस समय ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी वो जो है कोस्टल एरियाज देखकर ओपन की जाती थी। ठीक है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, क्योंकि उस समय जो है ब्रिटिशर्स जब इंडिया पे रूल कर रहे थे तो यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं थी। इंडस्ट्रीज कहाँ थी? इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, यहाँ से सारा रॉ मटेरियल जाता था। ठीक है, और थोड़ी बहुत जो इंडस्ट्रीज थी वो भी ब्रिटिशर्स ने इसलिए ओपन कर रखी थी ताकि क्या कर सके ब्रिटिशर्स, यहाँ से जो है सारा जो मटेरियल है वो एक्सपोर्ट, मतलब इंडिया में चीज़ें यूज़ ना होकर वो एक्सपोर्ट पर्पस से होती थी। तो एक्सपोर्ट इजीली कहाँ से होता था? कोस्टल एरियाज से। तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज कोस्टल एरियाज के पास ही पाई जाती थी। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात कर रहे हैं। कंसिक्वेंटली देयर इमर्ज सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स सराउंडेड बाय ह्यूज एग्रीकल्चर रूरल हिंडरलैंड्स। अब नीचे आ जाइए। द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज। मतलब फैक्ट्री लोकेशन, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज खोलने से पहले हम ये सारे फैक्टर्स को ध्यान रखते हैं ना, उसके अलावा हम देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी इम्पोर्टेंस हम देते हैं। लेबर को भी, स्पेशलाइज्ड लेबर कहाँ पे अवेलेबल है पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के लिए, उस तरीके के लेबर कहाँ मिलेंगे, ये सारी चीज़ें देखकर ही इंडस्ट्रीज़ ओपन की जाती हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है आज की क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो ये मैं इन जनरल बता रही हूँ आपको, आप खुद रीड करिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल 2 क्लासिफिकेशन है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, एग्रीकल्चर जो हो रॉ मटेरियल ऐसे जैसे कॉटन है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो कॉटन को यूज़ करती है फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में, एग्रीकल्चर पर बेस्ड है फॉर रॉ मटेरियल, उसको बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। और जो मिनरल पे बेस्ड है फॉर रॉ मटेरियल जैसे आयरन, स्टील, तो एग्रीकल्चर से प्रोवाइड नहीं होगा, वो तो माइंस से प्रोवाइड होगा, रॉक से प्रोवाइड होगा, ये मिनरल है तो उनको बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो जो इंडस्ट्रीज जिस रॉ मटेरियल पे बेस्ड है उसको उस हिसाब से जो है एज ए रॉ मटेरियल क्लासीफाई किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सेकेंड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। तो बेसिक और की इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है दैट इज कॉल्ड एज बेसिक और की इंडस्ट्रीज, और ऐसी इंडस्ट्रीज जो डायरेक्टली कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करती है उसे बोलते हैं कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज। इसको रीड कर लेते हैं। बेसिक और की इंडस्ट्रीज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, एग्जाम्पल आयरन, स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ये इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए उसको बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट, ऐसी इंडस्ट्री जो डायरेक्ट यूज़ के लिए प्रोवाइड करती है, जैसे शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, एक बार प्रोड्यूस हो जाता है तो वो डायरेक्ट यूज़ आता है उनका। ठीक है।
थर्ड अपना डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो स्मॉल इंडस्ट्री और लार्ज इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें 1 करोड़ से कम का पैसा खर्च हुआ है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज, और ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च होता है वो होती है लार्ज इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट अपना है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब जिसका जो है अपन कह सकते हैं रूल कह सकते हैं जिसकी इंडस्ट्री है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज है तो वो पब्लिक सेक्टर, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप की इंडस्ट्री है तो उसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनता है, इसमें एग्जांपल आते हैं। बेल और सेल क्या है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। उसी तरह से टिस्को बजाज ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज है। उसी तरह से जॉइंट सेक्टर मीन्स पब्लिक और प्राइवेट, गवर्नमेंट का भी 50% शेयर हो, प्राइवेट इंडिविजुअल का शेयर हो तो उसको बोलते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। फिर आता है फर्दर लास्ट जो इसका क्लासिफिकेशन है वो है कॉपरेटिव सेक्टर। कॉपरेटिव मतलब जब 4-5 जो लोग हैं मिलकर एक साथ जो कॉपरेशन में प्रोड्यूसर का भी हिस्सा हो, सप्लायर का भी हिस्सा हो, मैन्युफैक्चरर का भी हिस्सा हो, वर्कर्स का भी हिस्सा हो, तो सब लोग जो इक्वल रिस्क शेयर करते हैं उसको बोलते हैं कॉपरेशन में इंडस्ट्रीज खोलना। ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ वेट, तो हैवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज हैवी रॉ मटेरियल यूज होता है, आयरन इंडस्ट्रीज, और लाइट इंडस्ट्रीज में कुछ भी आ सकता है, लाइट से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिकल वो लाइट वेट में होते हैं तो उसको लाइट इंडस्ट्रीज। अब इन इंडस्ट्रीज को डीपली हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और शुगर इंडस्ट्रीज को पढ़ेंगे। ठीक है। और टेक्सटाइल मीन्स कपड़ों से रिलेटेड, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के भी 2 क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे, कॉटन टेक्सटाइल और जूट टेक्सटाइल। और फर्दर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर पे कौन सी इंडस्ट्रीज बेस्ड होती है, शुगर इंडस्ट्रीज। तो आज हम ये 3 टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन पहले देखेंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्यों बेनिफिशियल है। तो इंपॉर्टेंस देख रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बेटा, तो इट कंट्रीब्यूट्स टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज 14% जो है इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में या इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है। उसी प्रकार जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है 35 मिलियन। बेटा ये मेरी ओल्ड बुक है, मे बी आपकी जो न्यू लेटेस्ट बुक है उसमें फिगर्स चेंज हो गए होंगे, तो वो आप लेटेस्ट बुक के हिसाब से ही ध्यान देना। एम्प्लॉयमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है 35 मिलियन पर्सनस को। ठीक है। और सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर के बाद जो है सेकेंड लार्जेस्ट है। एंड फॉरेन एक्सचेंज जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है कितना हमको अवेलेबल करवाती है, 24.6%। ठीक है। इट कंट्रीब्यूट 4% टूवर्ड्स जीडीपी। हमारे पूरे जो जीडीपी है उसमें 4% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का है। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंपीटेबल इन द वैल्यू चेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओनली इंडस्ट्री है हमारे देश में जो सेल्फ सफिशिएंट है, किसी दूसरे देश पे निर्भर नहीं होना पड़ता है हमें टेक्सटाइल के लिए। हमें जो है टेक्सटाइल जो थिंग है, टेक्सटाइल रिलेटेड थिंग्स है वो हमें इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ती है, उल्टा हम जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल मटेरियल। तो हम सेल्फ सफिशिएंट भी हैं और कम्पिटेंट इनफ भी हैं टेक्सटाइल लेवल पे। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। मैंने बताया था टेक्सटाइल 2 तरीके का पढ़ेंगे, कॉटन टेक्सटाइल और जूट टेक्सटाइल। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कॉटन टेक्सटाइल। इन एंशियंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल वॉज प्रोड्यूस विद हैंड स्पिनिंग। ये पता ही है कि ब्रिटिशर्स से आने से पहले हम कैसे कपड़े बनाते थे, हाथ से बनाते थे। कॉटन के कपड़े कैसे बनते थे, हाथ से। स्पिनिंग और वीविंग। स्पिनिंग मीन्स कॉटन के बॉल्स में से धागा बनाना, उसको अपन बोलते हैं स्पिनिंग, और धागे में से कपड़ा बनाना उसको बोलते हैं वीविंग। तो ये सारे काम हाथ से होते थे पुराने टाइम में ब्रिटिशर्स के आने से पहले। ठीक है। बट आफ्टर द 18th सेंचुरी पावर लूम मशीन्स आने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड मशीन आने की वजह से जो है ये चेंज हो गया मेथड। अब पहले हैंडलूम होती थी इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज, बाद में पावर लूम हो गई। अवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सफर्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल, और स्पेशली कॉलोनियल पीरियड के दौरान जब हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था, हमारी इंडस्ट्रीज नहीं डेवलप हुई थी, तो हम हाथ से ही काम कर रहे थे। वहीं इंग्लैंड में पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो इंग्लैंड ने इंडस्ट्रीज ओपन करी थी, तो वहाँ से जो है सस्ते में मैन्युफैक्चर होकर कपड़ा जो है आने लगा। तो हम जो हमारी जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, उनको बहुत बुरा झटका जो है लगा, कंपटीशन फेस करना पड़ा और बहुत ज़्यादा डाउनफॉल फेस करना पड़ा। हमारी कंट्री में, इंडिया में जो फर्स्ट इंडस्ट्री टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश हुई वो हुई 1854 में मुंबई में। अंडरस्टैंड बेटा। नेक्स्ट आ जाइए नीचे।
टुडे देर आर नियरली 16, आज जो है जहाँ पहले एक भी इंडस्ट्री नहीं थी, आज जो है 1600 कॉटन एंड ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल जो है हमारे देश में है. About 80% of these are in the private sector and the rest in the public and cooperative sector. ठीक है, 80% प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने खोल रखी है मिल और 20% जो है बाकी जो है वो पब्लिक और cooperative sectors की हैं. 1600 में से 80%. Apart from these, there are several thousand small factories with 4 to 10 looms. In the early years, the cotton textile industry was concentrated. ये मैंने बताया पहले टाइम में जो है कॉटन इंडस्ट्री सिर्फ जो है कहाँ पे अवेलेबल थी, महाराष्ट्र गुजरात बेल्ट में. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है और ब्लैक सॉइल इज बेस्ट सुइटेड फॉर कॉटन. ठीक है. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल क्यों यहाँ पे होती थी, यहाँ पे रॉ मटेरियल जो है कॉटन ज़्यादा अवेलेबल है इसलिए यहीं पे होती थी. मार्केट अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी थी, प्लस आसपास पोर्ट फैसिलिटी थी, लेबर अच्छा था और मॉइस्ट क्लाइमेट. तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि वाई कॉटन वॉज कॉन्सेंट्रेटेड टू महाराष्ट्र एंड गुजरात इन अर्ली ईयर्स बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन, पोर्ट फैसिलिटी, लेबर एंड मॉइस्ट क्लाइमेट. ठीक है. This industry has close links with agriculture and provide a living to farmers. अभी क्या बेनिफिट है इन इंडस्ट्रीज़ का, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का, कि ये फार्मर्स को जो है एक तरीके से लिविंग प्रोवाइड करती है, एट द सेम टाइम वर्कर्स को भी लिविंग प्रोवाइड करती है. जो कॉटन रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको भी सपोर्ट करती है. कॉटन बॉल्स प्रकर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं गिनिंग में, स्पिनिंग में, वीविंग में, डाइंग में, डिज़ाइनिंग में, पैकेजिंग में, टेलरिंग में, स्विंग में, ये सारा कॉटन रिलेटेड वर्क है. तो एक तरह से देखा जाए तो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है एक लार्ज लेवल पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है. द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट मैनी अदर इंडस्ट्रीज़. और कॉटन टेक्सटाइल जो है दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट कर रही है, जैसे केमिकल, डाइंग, मिल, स्टोरेज, पैकेजिंग, मटेरियल, इंजीनियरिंग वर्क्स. इन सब इंडस्ट्रीज़ को भी कॉटन जो है इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है. तो मेजर रोल प्ले कर रही है देश के डेवलपमेंट में कॉटन इंडस्ट्रीज. वाइल स्पिनिंग कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज, स्पिनिंग जो है आज भी जो है, स्पिनिंग मतलब धागा बनाना, वो आज भी जो है महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु बेल्ट पे ही है क्योंकि वो नियर है, वहीं पे कॉटन मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रही है. तो स्पिनिंग एरियाज पास में ही खोले जाते हैं. जबकि वीविंग जो है वो पर्टिकुलर वहाँ पे नहीं है, वो अलग अलग जगह की अलग अलग स्पेशलिटी है. जैसे बनारस की साड़ी, कांजीवरम साड़ियाँ, अलग अलग एरिया के अलग अलग कपड़े फेमस होते हैं. तो जो वीविंग है कपड़ा बनाना वो अलग अलग जगह पे डिसेंट्रलाइज है, जबकि जो स्पिनिंग धागा बनाने का काम है वो गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु तक ही लिमिटेड है. Decentralized to produce scoop for incorporating traditional skill and designs of weaving in cotton, silk, zari, embroidery, etc. India has world-class production in spinning, but weaving supply low quality of fabric as it cannot use much of the high-quality yarn produced in the country. अब जो हमारा स्पिनिंग है ना वो हम बेस्ट कर रहे हैं. इंडिया जो है धागा जो प्रोड्यूस कर रही है ना, यान जो प्रोड्यूस कर रही है वो बेस्ट कर रही है. हमारा जो धागा है हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम जो हमारा कपड़ा बनाने का प्रोसेस है, वीविंग है, वो उतना क्वालिटी जो वीविंग है हम नहीं कर पा रहे, तो हमको वीविंग जो है इंपोर्ट करना पड़ रहा है. द हैंड स्पन खादी प्रोड्यूस लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम एज ए कॉटेज इंडस्ट्रीज. नीचे आ जाइए, स्टडी द फिगर अबाउट ये टेबल रहने. वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन पावरलूम एंड हैंडलूम. तो ये क्वेश्चन है. इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू जापान. इंडिया का जो थ्रेड है स्पिनिंग जो ये अपन कह सकते हैं धागा जो है वो जापान में भी जाता है. अदर इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया. इंडिया में जो दूसरे जो लेने वाले हैं वो है यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज. India has the second largest installed capacity of spindle in the world next to China at around 34 million. Since the mid-80s, the spinning sector has received a lot of attention. मैंने ये बता ही दिया, जो हमारा स्पिनिंग कैपेसिटी है, जो धागा बनाने की कैपेसिटी है वो बेस्ट है. आफ्टर जो चाइना है सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है ये धागा यान वो हमारी कंट्री से ही होता है. वी हैव अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यान.
अकाउंटिंग फॉर 1/4 ऑफ द टोटल ट्रेड। पूरे वर्ल्ड का जो है 1/4 मतलब 25% जो थ्रेड है वो इंडिया से ही जाता है। हाउएवर ट्रेड इन गारमेंट इज ओनली, जब दूसरी बात अगर देखो धागा तो सबसे ज़्यादा हमारे देश से जा रहा है, पर गारमेंट्स जो है कपड़े जो है वो सिर्फ 4% ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको आगे बताया था जो हमारा वीविंग है वो क्वालिटी वाला नहीं है, वो वीविंग सेक्टर कमज़ोर है, हम क्वालिटी वाला कपड़ा नहीं बना पा रहे हैं। आज भी उतनी अच्छी हमारे पास मशीनरीज नहीं है, तो धागा तो है पर हम कपड़े नहीं बना पा रहे हैं। और देश वही प्रोग्रेस करेगा जो फिनिश प्रोडक्ट बनाएगा। आई बात समझ में? वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, जैसे जैसे जो है एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनती जाती है तो उसमें वैल्यू ऐड होती जाती है, उसकी कॉस्ट इंक्रीज होती जाती है। सपोज धागा अगर 40 रुपये का मिल रहा है और वही उससे अगर कोई कपड़ा बना के बेचेंगे तो वो 700-800 रुपये का बिकेगा। ऑब्वियसली वैल्यू ऐड हो रही है। तो प्रोग्रेस के लिए क्या जरूरी है कि हम फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, ना कि रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करें। तो धागा तो हम 25% वर्ल्ड का प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर हम उस क्वालिटी का कपड़ा नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, वीविंग नहीं कर पा रहे, इसलिए हम जो है आज भी डेवलपिंग कंट्री में हैं। Our spinning mills are competitive at the global level and capable of using all the fibers we produce. The weaving, knitting, and processing units cannot use much of the high quality yarn that is produced in the country. There are some large and modern factories in these segments, but most of the production is in fragmented small units which cater to the local market. This mismatch is a major drawback for the industry. As a result, many of our spinners export cotton yarn while गारमेंट मैन्युफैक्चर हैव टू इम्पोर्ट फैब्रिक। इसलिए ज़्यादातर जो हमारे स्पिनर्स हैं वो दूसरे देश को एक्सपोर्ट करना ही पसंद करते हैं, और जो हमारे गारमेंट मैन्युफैक्चर है वो कपड़ा बाहर से मंगवाना ही पसंद करते हैं। ऑल्दो वी हैव मेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी लॉन्ग स्टेपल कॉटन, द नीड टू एक्सपोर्ट इज स्टिल फेल्ड, पावर सप्लाई इज इरेटिक। अब क्यों जो है हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे विविंग सेक्टर पे? तो ये यहाँ पे आंसर है इसका, क्योंकि हमारी जो पावर सप्लाई है वो कंटिन्यूस नहीं है, जो मशीनें हैं वो अपग्रेडेड नहीं है, प्रोसेसिंग सेक्टर है वो भी पर्टिकुलर नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जो है हम लोग जो है नहीं जो है वीविंग सेक्टर अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। अदर प्रॉब्लम्स आर द लो आउटपुट ऑफ लेबर, प्लस हमारे पास लेबर की भी कमी है, स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर, और जो सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज़ है वो भी जो है हमारे कॉटन इंडस्ट्रीज़ को टक्कर दे रही है। तो ये यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है कि दीज आर द रीजन्स फॉर नॉट प्रोड्यूसिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ वीविंग और फॉर इम्पोर्टिंग द फाइबर्स। अंडरस्टैंड बेटा? अपना नेक्स्ट टॉपिक है जूट इंडस्ट्रीज़। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं बेटा। अभी जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो तो आपको बोरिंग लगेगा, तो जूट इंडस्ट्रीज़, जूट टेक्सटाइल और ये नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। थैंक यू बेटा।